भारत की ये देरीना ख्वाहिश और कोशिश रही है जो हालिया दिनों में और बढ़ गई है कि पाकिस्तान को दुनिया में दहशतगर्दों का सहूलतकार और आमाजगाह साबित कर दिया जाए और फिर दुनिया दोबारा पाकिस्तान को इसी नज़र से देखे और बर्ताव करे। मगर हैरत अंगेज तौर पर दुनिया भारतीय बयानी और तवक्कात के बरअक्स रद्द-ए-अमल दे रही है और अमेरिका समेत बड़ी ताकतें न सिर्फ पाकिस्तान और भारत को यकजा करके दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव कर रही हैं, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया कोशिशों और शराकत का एतराफ़ और तारीफ़ें कर रही हैं। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गान तालिबान और दहशतगर्दी से मुताल्लिक 2 अहम कमेटियों की चेयरमैनशिप और वाइस चेयरमैनशिप मिलने के बाद पाकिस्तान के हक़ में अब एक और बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है, जिसे भारतीय मौक़िफ़ के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइक कुरेला ने अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए आर्म्ड सर्विसेज को ब्रीफिंग दी है, जहां उन्होंने अमरीकी मफादात पर मबनी मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करते हुए दाइश खुरासान के खतरे के हवाले से तफसीली जायजा पेश किया और दाइश खुरासान से निमटने के लिए अमरीका के साथ पाकिस्तान के ताउन और कार्रवाइयों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हमने दाइश खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शानदार शराकतदारी की। पाकिस्तान ने दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया। पाकिस्तान ने एबी गेट बम धमाकों के मरकजी किरदार जाफर को हमारे हवाले किया और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमने उसे पकड़ लिया है और उसे अमेरिका भेजने को तैयार हैं। वज़ीर दिफा और सदर को इत्तला कर दें। ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, "I've caught him. I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President." So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they will try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. Does it seem like they're scaling down or scaling up? So I think from ISIS Khorasan, they got hit very, very hard over the last several months. And so I would tell you right now, they're at a low point right now. What we're getting out of interrogation and exploitation has been significant. जनरल माइकल कुरेला ने मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि ये कोई दो तरफा इंतखाब है कि अगर भारत के साथ ताल्लुकात रखने हो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। Whatever we have to do not to go back to that place would be amazing. That's why we need to, if I could, yes, please. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. इससे पहले सदर ट्रंप भी कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुके हैं। 3.5 साल कबल दाइश के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तबाहकुन और नाअहली पर मबनी इनखला के दौरान एबी गेट पर बमबारी में 13 अमरीकी फौजियों और लातादाद अफराद को हलाक कर दिया था। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अभी इस खूनरेजी के जिम्मेदार मरकजी दहशतगर्द को पकड़ लिया है और वो अभी अमरीकी इंसाफ की तेज तलवार का सामना करने के लिए यहाँ आ रहा है और मैं इस इफरीत को पकड़ने में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ट्रंप इंतजामिया दाइश की ज़ैली तंजीम दाइश खुरासान को अमरीका समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा समझती है। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइक कुरेला ने यह भी बताया कि दाइश खुरासान की कार्रवाइयों को पाकिस्तान और अफगान तालिबान की जानिब से रोका जा रहा है और देखने में आ रहा है कि अफगान तालिबान और दाइश खुरासान एक दूसरे से नफरत करते हैं। जनरल कुरेला ने अपनी ब्रीफिंग में दाइश खुरासान के खतरे के हवाले से बताया कि आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गैर महफूज सरहदी इलाकों से दुनिया में जारी हालिया बहरानी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं ताकि अपने नेटवर्क्स को बरकरार रख सकें और अपनी सलाहियतें दोबारा हासिल कर सकें। दाइश खुरासान और दाइश शाम, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया की सरहदों से बाहर मगरबी मफादात बशमूल अमरीकी सरजमीन पर हमला करने की अपनी सलाहियत, इरादे और नीयत का मुजाहरा जारी रखे हुए हैं।
22 मार्च 2024 को दाइश खुरासान ने 2004 के बाद रूसी सरजमीन पर सबसे बदतरीन दहशतगर्द हमला किया और मॉस्को के सिटी हॉल म्यूजिक वेन्यू पर 144 सिविलियंस को कत्ल कर दिया। साथ ही अमरीकी अथॉरिटीज ने अमेरिका के खिलाफ ऐसे मंसूबों को नाकाम बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिनमें ब्रुकलिन में एक यहूदी मरकज पर इज्तिमाई फायरिंग और इलेक्शन के दिन ओक्लाहोमा शहर में पोलिंग के मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी शामिल थी। इसी तरह नए साल के दिन न्यू ऑरलियंस में होने वाला दर्दनाक हमला, जिसमें 14 अफराद हलाक हुए थे, वो एक ऐसे शख्स ने किया था जो दाइश के नजरिए और उसके मुसलसल प्रोपेगंडे से मुतासिर था। ब्रीफिंग के मुताबिक दाइश खुरासान वस्ती और जनूबी एशिया में एक फाल शाख के तौर पर मौजूद है, जो एक संगीन आलमी खतरा बन रही है, जिससे निपटने के लिए शराकत दारों के एक नेटवर्क की जरूरत है, जैसा कि पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। जनरल माइक कुरेला की ब्रीफिंग के मुताबिक दाइश खुरासान को अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान दोनों के दबाव के जरिए मुंतशिर किया गया है। ताहम उन्होंने कबायली इलाकों में अब भी एक मौसर नेटवर्क और नकलो हरकत की आज़ादी बरकरार रखी हुई है। ये पनागाहें दाइश के जंगजुओं को ये मौका फराहम करेंगी कि वो अपने करीबी दुश्मन यानी हमारे इलाकाई शराकत दारों के खिलाफ हमलों की मंसूबाबंदी कर सके, साथ ही दूर मौजूद अपने हतमी दुश्मन यानी अमरीकी सरजमीन के खिलाफ हमलों की मंसूबाबंदी कर सके। जनरल कुरेला ने मजीद बताया कि मेरी राय में अपनी नाकामियों के बावजूद दाइश अब भी मगरबी मफादात पर बैरून मुल्क हमले करने की सलाहियत और नीयत रखती है, और वो भी बहुत कम या बगैर किसी पेशगी वार्निंग के।